Welcome to Management Concepts. In this video, we'll discuss about Frederick Winslow Taylor. He is also called as father of scientific management and popularly known as F.W. Taylor. F.W. Taylor was born on 20th March 1856 in Pennsylvania, America. He was a mechanical engineer. In 1878, he started working as machine shop laborer at Midwell Steel Workers. So that was the company. At Midwell, working as a laborer and mechanist, Taylor recognized that workmen were not working properly. They have to bring their own instruments for working. They were responsible for deciding the nature of work they have to complete. उस टाइम पे ऐसा था कि जो लोग उस कंपनी में काम करते थे उनको इंस्ट्रूमेंट खुद ही घर से लाने पड़ते थे और वो खुद डिसाइड करते थे कि उनको उस दिन क्या काम करना है. When he became a foreman, he expected more output from the workmen. In order to determine how much work should properly be expected, he began to study and analyze the productivity of both the men and the machines. Books and research paper published by Taylor. He wrote many books and many research paper. Among all those, the Principles of Scientific Management written in 1911 was the benchmark. Because of that only, he is called as father of scientific management and efficiency movement and father of industrial engineering. He was primarily concerned about the efficiency of workers and optimum utilization of resources. Taylor's principles and techniques were based on the observation he conducted in factory. He emphasized on adoption of scientific methods to the problems of management. टेलर ने क्या किया कि उनके कंपनी में जो लोग काम कर रहे थे उनको बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया और उसके बाद कुछ साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ किया मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. Hence, scientific management is based upon careful observation, objective analysis, and innovative outlook. It is the art of knowing exactly what is to be done and the best way of doing it. Scientific techniques are applied in methods of work, recruitment, selection, and training of workers. According to F.W. Taylor, scientific management means knowing exactly what you want men to do and saying that they do it in the best and the cheapest way. टेलर के हिसाब से साइंटिफिक मैनेजमेंट ये था कि आपको पता होना चाहिए आपके अंडर जो लोग काम करने वाले हैं उनका एग्जैक्ट काम क्या है और वो काम करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है और उसके साथ में सबसे सस्ता भी. अगर हमें एफ.डब्ल्यू. टेलर के काम को समराइज करना है तो वी कैन समराइज इन दिस मैनर. समरी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर. सेपरेशन बिटवीन प्लानिंग एंड डूइंग. डेवलपमेंट ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ वर्क. स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मटेरियल्स, मशीन्स, टूल्स एंड देयर बेस्ट हैंडलिंग. Determination of standard time. Development of standard working conditions. Selection of the best worker for every work. Scientific training to workers. Proposition of functional organization. Introduction of differential piece rate system and emphasis on mental revolution. Now we'll discuss all the functions given by Taylor in elaborated manner and in detail. So very first is separation between planning and doing. According to Taylor, planning and its execution should not be done by a single person or group of person. He said one group of person should make planning and other group should execute it. This will help both the groups of persons to become specialized in their work, which will lead to better productivity. टेलर के हिसाब से प्लानिंग करने वाले लोग अलग होने चाहिए और उसका एग्जीक्यूशन करने वाले लोग अलग होने चाहिए. इससे वो लोग अपने अपने काम में स्पेशलाइज्ड होंगे. Second is development of the best method for work. According to Taylor, we have to identify best method to do the work.
by identifying and listing the essential activities to be done and the way these activities should be done. This will lead to the improvement of quality and quantity of production. इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपको आपके घर से किसी एक जगह पे जाना है, उस जगह पे जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, 1 2 3। तो हमें क्या करना है, हम जनरली क्या करते हैं कि हम ट्राई करते हैं कि अगर मैं पहले रास्ते से जा रहा हूँ तो मुझे कितना टाइम लग रहा है, दूसरे से कितना, तीसरे से कितना, और ये सब ट्रायल करके हम डिसाइड करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल सेकंड रास्ते से अगर मैं जा रहा हूँ तो मुझे टाइम कम लग रहा है और वो रास्ता भी सही है। तो टेलर का भी मानना यही था कि आपको अगर कोई काम करना है तो वो काम करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सी हो सकती है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। इससे क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ता है प्रोडक्शन का। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मटेरियल्स, मशीन, टूल्स एंड देयर बेस्ट हैंडलिंग। Taylor emphasized for the purpose of only standard materials which should be properly stored and used as per prefixed standard. He insisted on standardization of machines and tools. Through experiment, he determined the size, shape and handle length of shovels for uplifting iron ore and coal, etc. He was of the view that proper use of maintenance of machines tools decreases the chance of accident and also increases the life of this equipment. उनके हिसाब से यहाँ पे जो शॉवेल दिख रहा है, उन्होंने ट्रायल एंड एरर एंड एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये डिसाइड किया कि उसका साइज कितना होना चाहिए, उसका शेप क्या होगा, उसके हैंडल का लेंथ कितना होगा। और ये जो पूरा काम है, ये जो मिडवेल स्टील जो कंपनी है वहाँ पे आयरन ओर और कोल रिलेटेड काम होता था, तो उसके लिए ये इक्विपमेंट यूज़ होता था। उनके हिसाब से अगर हम प्रॉपर मेंटेनेंस करेंगे अपने टूल्स का या मशीन का तो एक्सीडेंट्स होने के चांसेस कम होंगे और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा। डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाइम। Determination of standard time through time study for completing a particular piece of work. Difference between efficient and inefficient workers could be made and measures may be taken to improve the efficiency of lesser efficient workers. For this purpose, he also introduced differential piece rate system फॉर वेज पेमेंट। उनके हिसाब से हमें ये देखना पड़ेगा कि टाइम, स्टैंडर्ड टाइम कितना लगता है काम करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई टेबल बना रहे हैं तो टेबल बनाने के लिए स्टैंडर्ड टाइम कितना लगता है ये हमें पहले डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद हमें इफ़िशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम कैसे करेंगे ये आइडेंटिफाई कि अगर फॉर एग्जांपल एक टेबल बनाने के लिए हमें 1 घंटा लगता है तो हम वर्कर्स को टेबल बनाने के लिए दे देंगे। हम ये देखेंगे कि कौन से ऐसे वर्कर्स हैं जो 1 घंटे में टेबल बना रहे हैं और कौन से ऐसे वर्कर्स हैं जिनको 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो जो लोग बराबर टाइमिंग में टेबल बना रहे हैं उनको हम इफ़िशिएंट वर्कर्स बोलेंगे और जो लोग टाइम ज़्यादा ले रहे हैं उनको हम इनएफिशिएंट वर्कर्स बोल सकते। उन्होंने इसके एडिशन में एक सिस्टम सजेस्ट किया, वो था डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। ये आगे के पॉइंट में है, उस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा डीप में इसको स्टडी करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड वर्किंग कंडीशंस। वर्किंग कंडीशंस अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स। टेलर recommended maintaining proper lighting, temperature, humidity, cleanliness and security at the place of work in the plant. उनके हिसाब से अगर हम जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं वो जगह अगर हमने क्लीन रखी, प्रॉपर तरीके से रखी, तो उसका इम्पैक्ट प्रोडक्टिविटी पे होगा और वो पॉजिटिव होगा। तो इसके लिए उन्होंने सजेस्ट किया कि जहाँ पे लोग आपके काम कर रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए, लाइट जो है वो अच्छी तरीके से होना चाहिए, वहाँ का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी वो मेंटेन रहनी चाहिए, बहुत कम भी नहीं बहुत ज़्यादा भी नहीं, और वो जो जगह है वो क्लीन होनी चाहिए और वहाँ पे सिक्योरिटी होनी चाहिए। सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट वर्कर फॉर एवरी वर्क। Taylor gave an importance to selection of most suitable workers for the given piece of work. He explained that a worker may not be suitable for all the works,
So, the best suitable workers should be scientifically selected for specific work for getting best result. कॉमन सेंस है, हर एक इंसान हर कोई काम नहीं कर सकता, हर एक इंसान हर किसी काम के लिए सूटेबल भी नहीं होता। तो आज जो हम सिलेक्शन प्रोसेस देख रहे हैं जिसमें एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, टेक्निकल राउंड्स, एचआर राउंड, उसमें बहुत सारे साइकोमेट्रिक टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट जो आज हम देख रहे हैं, वो टेलर ने सजेस्ट किया था कि जब भी आप किसी एम्प्लॉय का सिलेक्शन करोगे तो वो एम्प्लॉय उस पोस्ट के लिए सूटेबल है या नहीं है, ये पहले देखना पड़ेगा। अगेन, अगर वो सूटेबल है तो ही उसको सिलेक्ट कीजिए, अगर वो नहीं है तो आप उसको सिलेक्ट मत करो। Scientific training to workers. Proper training should be provided to the workers so that they become efficient by improving their knowledge and skills. It will also help the workers to handle the machine and tools properly with greater motivation and higher morale. There is a need for selecting right workers and qualified trainers for successful training program. अब उनके हिसाब से इवन दो वी आर यूजिंग सिलेक्शन टेक्निक्स फॉर सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स, जब आपके एम्प्लॉयज़ कंपनी में आते हैं तो आपको उनको ट्रेनिंग देना है कि जो भी वो काम करने वाले हैं वो काम को कैसे उनको करना है, आपको उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। और आपको ये भी ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि काम करते टाइम अगर उनको कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई मशीन यूज़ करनी है, हैंडल करनी है, तो उस मशीन को या टूल्स को किस तरीके से हैंडल किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। Proposition of functional organization. Introduced functional form of organization for better results. He proposed a team of 8 members for managing production activities, 4 members for planning and 4 members for the purpose of executing the plan. अब ये जो 8 मेंबर वाला सिस्टम उन्होंने सजेस्ट किया था वो प्रोडक्शन रिलेटेड था। इसका मतलब ये है कि आज हम जो देखते हैं सीईओ, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, जोनल मैनेजर्स, उसके बाद एग्जीक्यूटिव्स, ट्रेनीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये तो हायरार्की है, ये इसी तरीके से कंपनी में काम होना चाहिए। इसको हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम. Taylor suggested that 2 rates of wages payment were introduced for the payment. One rate for those workers who completed the standard work within a standard time. Other rate for the workers who could not complete the assigned work within a prescribed manner. हमने पहले ही बताया कि अगर हम ये इफ़िशिएंट वर्कर्स कौन है, नॉन इफ़िशिएंट वर्कर्स कौन है, ये कैसे आइडेंटिफाई करते। बट टेलर का मानना ये था कि जो इफ़िशिएंट वर्कर्स है उनको हमें ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेंगी, ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, और जो इनएफिशिएंट वर्कर्स है उनको प्रोपोर्शनेटली हमें कम पैसे देने पड़ेंगे, कम सैलरी देनी पड़ेंगी। टेलर प्रूव्ड दैट दिस वे सिस्टम वाज हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड वाज बेनिफिशियल फॉर बोथ एम्प्लॉयर एज वेल एज वर्कर्स। उन्होंने प्रूव किया कि अगर ये सिस्टम हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन से तो इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा और ये एम्प्लॉयर के लिए भी बेनिफिशियल है और एम्प्लॉयज़ के लिए भी बेनिफिशियल है। लास्ट इज emphasis on mental revolution. The term mental revolution is a combination of two words, mental, which means relating to brain, that is thinking, and revolution, which means drastic change. It refers to drastic change in the thinking. ये जो पूरा काम किया था टेलर ने, इसका एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो हुआ था वो था मेंटल रिवॉल्यूशन। पहले जो लोगों के दिमाग में वर्कर्स रिलेटेड, कंपनी रिलेटेड जो थॉट्स थे वो पूरे बदल दिए गए थे बिकॉज ऑफ टेलर्स वर्क। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए, और ऐसे ही वीडियोस और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो, लिंक्डइन पे ज्वाइन कर सकते हो, आप हमें ईमेल भी भेज सकते हो और आप हमारे वेबसाइट को विजिट भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।